The fire of hatred that the Bharatiya Janata Party and Narendra Modi have ignited all across this country will actually end up destroying everything. So sit up and take note. Because instead of creating joy and harmony, peace and celebration everywhere during the festive season of Christmas, Modi's goons are busy intimidating and threatening people all across the country. On one hand, the Prime Minister wants to hug the Pope for a photo opportunity. He never tires of saying that he has an old connection with the Christian community. But on the other, what is happening is in sharp contrast to his words. What's happening during Christmas right under his nose is shameful and embarrasses India at the global stage. Any random goon, just any random person on the street has become a self-appointed guardian of religion, is terrorizing people who are actually celebrating Christmas. Let's start with Delhi, the east of Kailash region, where some goons intimidated and chased away women who had come out in the market simply because they were wearing Santa Claus caps. In Odisha, a boy brazenly gets out of a car, starts bullying, and actually ended up chasing away a poor family that was selling Santa Claus caps by the roadside. In Madhya Pradesh's Jabalpur, this is truly brazen. During the organization of a Christmas program for the specially abled children, BJP's Deputy District President Anju Bhargav, after showing cruelty to a visually impaired girl, manhandling her, was actually heard saying, "You are blind now and you will remain blind in your next birth as well." Imagine the mindset here. In Haridwar, they mounted such a strong opposition against a Christmas celebration that was scheduled at the hotel that the hotel administration actually had to end up cancelling that program. In Kerala's Palakkad, they did not spare little children who were singing the traditional Christmas carols. They were attacked. The arrested person, with no surprises, Ashwin Raj, is of course a worker of the BJP RSS. Now, this is what Narendra Modi has done to India. There is no respect for anyone else's faith, no dignity even for the specially challenged. People are no longer even afraid to take the law into their own hands because they jolly well know that the ruling government will patronize and protect them if they were to spew venom against other communities and, of course, terrorize other religions. But remember one thing, the world is watching, and this targeting of religious minorities in the country will not go unnoticed. दोस्तों नमस्कार, मैक्सम न्यूज़ के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज 25 दिसंबर है, जिसे लोग पूरे देश, पूरे विश्व में क्रिसमस डे के नाम से मनाया जाता है। ये ईसाइयों का बहुत बड़ा त्यौहार होता है, जिसको कि पूरे शान और सम्मान के साथ ईसाई वर्ग मनाता है। लेकिन पिछले 11 साल से ये देखा जा रहा है कि देश के अंदर कुछ खास तत्व, सामाजिक गैर सामाजिक तत्व इस दिन समुदाय विशेष के खिलाफ में हिंसा और नफरत की घटनाएं करता है। ख़ास तौर से
चर्चों में जाकर तोड़फोड़ करना, वहाँ की बिल्डिंग में आग लगाना, ऐसे बहुत सारे इंस्टेंस यानी हादसे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। देखा जा रहा है कि किस तरीके से सैकड़ों की संख्या में ये सत्ता समर्थक लोग, अपने आप को सनातनी कहने वाले लोग, विशेष समुदाय के लोगों के पूजा घरों में घुसकर आग लगाते हैं, वहाँ के सामानों को तोड़फोड़ करते हैं, साथ में वहाँ मौजूद लोगों को गाली गलौज के साथ साथ मारपीट करने से भी बाज नहीं आते हैं। ऐसे बहुत सारे जगह पर देखा जा रहा है कि भीड़ की भीड़, बड़े बड़े शहरों में भीड़ की भीड़ गिरजाघरों और चर्चों में घुस जाती है, वहाँ पूजा करने, प्रेयर करने वालों को पर गाली गलौज करते हैं, उनके साथ अभद्रता करते हैं, साथ में यहाँ तक कि गिरजाघरों में आग तक लगाई जा रही है और जिला प्रशासन के साथ साथ पुलिस मूक दर्शक बनी रहती है। दोस्तों, ये हालात खास तौर से वहाँ ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं जहाँ पर बीजेपी शासित राज्य हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, मतलब जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार होती है वहाँ पे सांप्रदायिकता के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, हिंदू ईसाई के नाम पर वहाँ पर आतंकी तांडव किया जाता है, लोगों को आततायी किया जाता है, उनको परेशान किया जाता है, उनके साथ गाली गलौज कर उनके धार्मिक उस पर आस्था पर चोट पहुंचाने का काम करते हैं। ऐसे में स्थानीय गुंडे जो कि इस भीड़ में घुसकर आगजनी और लूट मार कर काम करते हैं, ऐसे में जिला प्रशासन और पुलिस की ये ड्यूटी बनती है कि वो ऐसे लोगों पर काबू पाए और ऐसी घटनाओं को होने से रोके। लेकिन खास तौर से बीजेपी शासित राज्यों में पुलिस प्रशासन दोनों मिलकर ऐसे लोगों के सामने मूक दर्शक बन जाते हैं। वो कोशिश उनकी काबू पाने के बजाय उनको भड़काने की होती है। यानी कि ये समझ लीजिए कि छत्तीसगढ़ में जो एक गांव में एक स्थानीय चर्च के अंदर सैकड़ों की संख्या में जो तथाकथित हिंदू समर्थक अपने आप को बताते हैं, सत्ता के समर्थक बताते हैं और सनातन धर्म की आड़ में मस्जिद चर्च में घुस जाते हैं, वहाँ पर आगजनी करते हैं, वहाँ के प्रेयर हॉल में घुसकर तोड़फोड़ करते हैं, वहाँ की संपत्ति को चोट पहुँचाते हैं और वहाँ पर एक भय का माहौल क्रिएट करते हैं। ऐसे में जब छत्तीसगढ़ की पुलिस वहाँ पहुँचती है, काफ़ी समय बाद जब पहुँचती है, तो वहाँ पर जो वो इन आतताइयों पर काबू पाने का कोशिश करते हैं, तो उन्होंने पुलिस पर भी ज़बरदस्त हमला कर दिया और लगभग 2 दर्जन पुलिस अफसरों सहित सिपाहियों को घायल किया जाता है। ऐसे में ये साफ पता चल रहा है कि जो धर्म के नाम पर सांप्रदायिकता फैलाकर लोगों के बीच में अपने आप को सत्ता का समर्थक घोषित करते हैं और वहाँ की स्थानीय पुलिस और सरकारें हाथ पे हाथ धरे बैठी रहती हैं। ये साफ पता रहता है कि अगर सरकार और पुलिस चाह ले तो कोई भी अपराध या ऐसी धर्म सांप्रदायिकता फैलाने की हिम्मत किसी में न हो। लेकिन ये बात तय है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी है, तब से ऐसे हादसों और वारदातों में भारी इजाफा आया है। देखा जा रहा है कि कभी मुस्लिम्स के मस्जिदों के सामने ये तथाकथित सनातनी लोग पहुंचते हैं और वहाँ धूम मचाते हुए भारी आवाज़ में लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, उनकी मस्जिदों को चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तोड़ते हैं, उन पर भगवा ध्वज फहराने की कोशिश करते हैं। ऐसे में ये साफ संकेत जाता है कि जब भी कोई त्यौहार आता है, हिंदू का त्यौहार आता है, तो हिंदू समर्थक लोग, भगवाधारी लोग धार्मिक स्थलों पर जाकर नाचते गाते हैं और वहाँ पर संप्रदाय विशेष के खिलाफ में गाली गलौज करते हैं, उनकी माँ बहन के लिए अपशब्द कहे जाते हैं, वो भी लाउड स्पीकर पर, ताकि माहौल ऐसा बने कि हिंदू मुस्लिम होने की पूरे चांस है। लेकिन ये समझ लीजिए कि सांप्रदायिकता फैलाने और उसे रोकने की जिम्मेदारी किस पे होती है? वो स्थानीय प्रशासन और
पुलिस पे होती है, लेकिन सत्ता के समर्थन में ये प्रशासन और पुलिस मूक दर्शक बन जाती है। ऐसे में साफ जाहिर होता है कि जब से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और आई है, तब से सांप्रदायिकता में भारी इजाफा हुआ है। कभी दलितों के खिलाफ में हिंसात्मक वारदातें होती हैं, तो कभी मुसलमानों को लेकर उनकी मस्जिदों पर जो ये ऐसे लोग धर्म सांप्रदायिकता फैलाने वाले लोग वहाँ पर पहुंचकर मस्जिदों के आगे तांडव करते हैं, संप्रदाय विशेष को टारगेट करते हैं और ऐसा माहौल तैयार करते हैं कि हम कुछ भी कर लें, सरकार और प्रशासन उनके ऊपर कोई भी खिलाफ एक्शन लेने को नहीं दिखती है। ऐसा पिछले कई सालों से देखा जा रहा है। रामनवमी का त्यौहार हो, नवरात्र हो या फिर दशहरा जैसा पर्व हो, ऐसे में लोग जुलूसों की शक्ल में मस्जिदों के सामने नाचते गाते हैं और संप्रदाय विशेष को टारगेट करके गालियां बकते हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि प्रदेश और प्रदेश में जिस तरीके से अल्पसंख्यकों के खिलाफ में, संप्रदाय विशेष के खिलाफ में भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थक जिस तरीके का तांडव उपद्रव करते हैं, मारपीट करते हैं, आगजनी करते हैं और उस पर सरकारें और पुलिस कोई भी गंभीर एक्शन लेने को तैयार नहीं, क्योंकि ये सब ऊपर से नीचे तक सिर्फ ऐसे लोगों को समर्थन मिलता है जिसके वजह से उनका हौसले काफ़ी बड़े हैं, क्योंकि शासन प्रशासन उनके साथ खड़ा दिखता है। माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम। ये आप लोग करेंगे क्या? नहीं, जाओ जाओ जाओ, यहाँ से जाओ। ये काट रहा नहीं है क्या? ये क्यों पे फालतू वो कर रहे हो अभी? अपने घर में बनाओ, जो बनाना जाके अपने घर में बना जाओ। यहाँ से टोपी और उतार के क्या ड्रामा रखते हो? मत जाओ, ये यहाँ धर्म पर जाओ जाओ। देखो क्या ये लोग लिख के रखे हैं इन्होंने, ये लोग है ना ये ना आप अपनी प्रॉब्लम में जाओ, हम कंप्लेंट करेंगे। अपने घर तो जाएंगे कि नहीं? हाँ घर जाओ, घर जाओ, हाँ जाओ, घर जाओ, घर जाओ, सीधा घर ही जाओ। ये किसी को पर्चा देखते हुए दिखना जाए, सीधा घर ही जाओ, अपने घर जाओ सीधा। ये देखो ना, पढ़ो ना, ये देखो पढ़ो, उसमें क्या
दे रहे हैं। ये पर्चा दे मत देना किसी को। चलो